السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم نے علم کی دعائیں پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے کیا تھا آیت نمبر 29 تک، آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 30 سے۔ پارہ 1 ہے ہمارا الف لام میم، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو شروع کرتی ہوں میں، آپ سب کو میری وائس کلیئر ہے؟ جی بابا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربو کا، تیرے رب نے، کس سے کہا؟ آگے بتایا جا رہا ہے للملائکتی، فرشتوں سے۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں تیرے لیے زمین میں خلیفہ جانشین۔ قالوا اتجعل، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، یہاں پر قالو جو ہے یہ فرشتوں کے لیے آیا ہے، انہوں نے کہا یعنی کہ فرشتوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ کہا تو فرشتوں نے پھر جواب میں کہا، قالو، تو کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، یعنی کہ زمین میں، کیا تو بنائے گا زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن نسبح، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس لک، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قال انی اعلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کی بات کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جیسے فرشتوں نے کہا کہ وہ تو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ویسے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہاں کلیئرلی ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، یا فرشتے بھی نہیں جانتے۔ تو جب فرشتے ہی نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب ہیں، تو ہمیں کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم کے ساتھ شرف بھی بخشا ہے۔ انسان کو علم تو دیا ہے اور ساتھ ہی اسے شرف بھی بخشا ہے۔ انسان کی عزت بھی علم کے ساتھ ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اور جب انسان لا علم ہوتا ہے تو جاہلی کی باتیں کرتا ہے تو اس کی لوگ پھر عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو علم کا سیکھنا سکھانا بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور کیا ہے، کھانے پینے سے پہلے علم عطا کیا گیا، اور ہمارے لیے علم نافع حاصل کرنا کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف رہتے ہیں۔ ابھی بھی صبح کے ٹائم ہماری کلاس ہو رہی ہے، صبح کے 6 بجے، اتنا بہترین ہمارا ٹائم ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں کن چیزوں میں اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اور کلاس میں اتنے زیادہ کم لوگ آ رہے ہیں۔ تو کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے علم کا سیکھنا۔ نیکسٹ آیا کرتے ہیں آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آیت نمبر 31. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے السماء، نام. کیسے نام؟ کلہا، سارے کے سارے، یعنی کہ تمام کے تمام نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے. ثم عرضهم، پھر پیدا کیا ان کو، علی الملائکہ، فرشتوں کے اوپر، ان ناموں کو فرشتوں کے اوپر پیدا کیا. فقال انبئونی، پھر کہا بتاؤ مجھ کو، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر کہا بتاؤ مجھ کو نام ان کے، اگر ہو تم سچے. کہ عبادت صرف تسبیح کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کے سیکھنا سکھانا بھی ایک عبادت ہوتا ہے. تسبیح سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ علم حاصل کرنے کا ہے اور علم سیکھنے سکھانے کا ہے. یعنی کہ تسبیح سے بھی زیادہ درجہ ہے جب آپ اس کلاس میں آئے ہو، یہاں کچھ سیکھ رہے ہو، تو کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہو اور میں کچھ سکھانے کے لیے آئی ہوں آپ لوگوں کو. تو علم کا سیکھنا سکھانا جو ہے وہ تسبیح پڑھنے سے بھی بہتر ہے یہ درجہ، علم کو سیکھنے سکھانے کا. آیت نمبر 32 میں کیا ہے یہاں پر؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك، انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمارے لیے، الا ما علمتنا، مگر جو سکھایا تو نے ہم کو، جو تو نے ہم کو سکھا دیا بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے. آیت نمبر 33. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آیت نمبر 33. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم بتاؤ ان کو، یعنی کہ فرشتوں کو، نام ان کے. فلما انبأهم بأسمائهم، تو جب اس نے بتا دیے ان کو، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتا دیے ان کے نام. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں میں نے کہا تھا واسطے تمہارے، یعنی کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں میں غیب اور زمین کے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. میں سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا؟ فرشتوں سے. للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہا ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ واسطے آدم کے، یعنی کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا،
तो उन्होंने सजदा किया, यानी कि फरिश्तों ने। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो उन्होंने सजदा किया मगर सिवाय इब्लीस के। लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। जब अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो, और ये सजदा कौन सा था? ये सजदा कोई नमाज वाला सजदा नहीं था, बल्कि इस सजदे को यहाँ पर आप हाईलाइट कर लें। ये जो सजदा है ये क्या है? ये है सजदा ए ताजीम। ठीक है, सजदा ए ताजीम। ठीक है, ताजीमी सजदा है ये, इसको सजदा ए ताजीम बोलते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सजदा करने को बोला फरिश्तों से कि आप आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो सभी फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया मगर इब्लीस के सिवा। सिर्फ इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। हालांकि इब्लीस बहुत ज्यादा इबादत गुजार था, लेकिन यहाँ पर उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दी। तो फिर क्या हुआ? अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और बड़ा बनना चाहा। यानी कि ये चाहा कि मैं इंसान से बड़ा हूँ। ये सोचा उसने कि मैं इंसान से बड़ा हूँ तो भला मैं उसको क्यों सजदा करूं। वकाना मिनल काफिरीन, और हो गया वो काफिरों में से। सिर्फ अल्लाह ताला के एक हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से वो काफिर करार पाया गया। और हम तो दिन भर में ना जाने कितनी नाफरमानियां करते हैं, और फिर भी इतने ठाट से घूमते फिरते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी नेमत देने के बाद, यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बेहतरीन शक्ल पर पैदा किया, फिर इल्म अता किया, उसके बाद इज्जत और अजमत का मकाम दिया गया, इंसान को सजदा करवाया गया। ये सजदा सजदा ताजीम था, सजदा इबादत नहीं था, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी को भी इबादत जायज नहीं। लेकिन अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शराइत है, उसमें ये सजदा भी मना कर दिया गया। किसी की ताजीम के लिए भी जमीन पे सर नहीं टेकना चाहिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो तब इस सजदा ताजीम को खत्म कर दिया गया। उससे पहले जो थे लोग आपस में भी जैसे अपने बड़ों से या अपने बड़े ओहदे वालों से मिलते थे तो उनको कुछ सजदे की टाइप का कुछ करते होंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो सजदा ताजीम को जो है वो बंद कर दिया गया। किसी की ताजीम के लिए भी जमीन पर, किसी की ताजीम के लिए जमीन पर सिर रखना या फिर रुकू करना, जैसे रुकू में तो हम आधे ही झुकते हैं ना, और सजदे में पूरे झुकते हैं, तो इस तरह से करना जो है वो बिल्कुल मना करार दे दिया गया। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिनों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। कहता है कि ये जिन्नों में से था, ये जो है इब्लीस ये जिन्नों में से था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सिजदा करने के लिए कहा था ना, तो ये जो इब्लीस है ये जिन्नों में से था। कहते हैं कि इब्लीस इतना इबादत गुजार था कि अपनी इबादत की कसरत की वजह से वो फरिश्तों का हमनशीन हो गया था। तो वो जिन्नों में से, लेकिन वो फरिश्तों के साथ रहने लगा, मतलब हमनशीन हो गया, उनके दोस्तों की तरह हो गया, अपनी इबादत की वजह से इतना ज्यादा इबादत गुजार था। तो इसका मतलब है कि वो उनके साथ उठता बैठता था, फरिश्तों के साथ साथ रहने लगा। इसलिए जब फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदे का, तो ये भी वहीं पर था, वही मौजूद था। तो इसने इनकार किया और इसने बड़ा बनना चाहा और काफिरों में से हो गया। तो ये इस आयत का खुलासा है। तो अब आपको पता चला होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि इब्लीस जिन्नात था, इब्लीस फरिश्ता था। तो यहाँ पर आपका जो ये डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहा तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, क्योंकि इब्लीस जो है वो जिन्नातों में से था, तो इब्लीस भी वहीं फरिश्तों के साथ मौजूद था, तो उसने सजदा करने से मना कर दिया। तो जब उसने सजदा करने से मना कर दिया और अपने आप को बड़ा बनना चाहा तो फिर वो काफिरों में से हो गया। नेक्स्ट है हमारी आयत नंबर 35। وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين। वकुलना, और कहा हमने, या आदम उस्कुन, ए आदम रहो तुम,
आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया रहो तुम व आंत व ज़ौजुकल जन्ना, तुम और तुम्हारी बीवी। और उनकी बीवी का नाम जो है वो हव्वा था, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हव्वा था। तो यहाँ पर कहा गया कि रहो तुम और तुम्हारी बीवी, कहाँ रहो? अल जन्नता, जन्नत में। वकुला मिन्हा, और दोनों खाओ इसमें से। रगदन हैसु शि'तुमा, क्या खाओ? तो खूब अच्छी तरह, जहां से तुम दोनों चाहो, यानी कि जन्नत में जहां से तुम दोनों चाहो वहां से जो चाहे खा सकते हो। वला तक़रबा हाज़िही शजरता, और ना तुम दोनों करीब जाना इस दरख्त के। वहां पर जो एक दरख्त था उसकी तरफ इशारा करके बताया गया। ये जो है हाजी ही, ये इशारतन बोला जाता है किसी चीज के लिए जो सामने होती है। हाजी शजरता, बस ना तुम दोनों करीब जाना। दोनों से कहा गया, उनको अलर्ट किया गया कि तुम दोनों करीब ना जाना। हाजी शजरता, इस दरख्त के। फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में से। अगर तुम उस दरख्त के करीब गए तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए, ऐसा सोचने लगे वो कि काश वो नेमतें हमेशा मेरे पास रहती। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, उनके पास जाके रोने लगा, बहकाने फिसलाने लगा उनको उनके लिए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहा हो? कहने लगा, मैं इस गम से रो रहा हूँ कि तुम मर जाओगे और जन्नत की ये नेमतें तुमसे छूट जाएंगी। ये सुनकर उनके दिल में भी गम पैदा हुआ, और वो कहने लगे, क्या इसका भी कोई इलाज है? कि मतलब कि हम ना मरे, क्या इसका भी कोई इलाज है? कोई तरीका है इसका कि जिसकी वजह से हम हमेशा यहीं पर रहें और यहाँ से ना निकाले जाएं? तो उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें एक दरख्त के बारे में बताता हूँ। अगर तुम उसका फल खा लोगे तो तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, मरोगे नहीं, कभी यहाँ से निकाले नहीं जाओगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको दरख्त के पास लिया, उनको जो है अपने जाल में फंसा लिया। उनसे उस दरख्त के बारे में कहा कि अगर तुम इस दरख्त के फल को खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे, कभी मरोगे नहीं, और हमेशा यहीं पर रहोगे। तो बहला फुसलाकर उनको उसी दरख्त के पास ले गया जिसके करीब जाने से उनको मना किया गया था। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين। तो उसके बाद होता ये है, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, तो फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने, अनहा, उससे, फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फी, फिर निकाल दिया उन दोनों को उससे जो वो दोनों थे उसमें। यानी कि जब शैतान ने उनको फिसला दिया और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया तो फिर उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। वक़ुल्ना हबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, और कहा हमने, उतर जाओ, बास तुम्हारे वास्ते बास के दुश्मन है, और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और फायदा उठाना है एक वक्त तक। अब जो है तुम्हारा ठिकाना जमीन में है और तुम उससे एक वक्त तक के लिए फायदा उठा सकते हो। अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन के लिए पैदा किया था, जन्नत तो सिर्फ इम्तिहान के लिए रखा था, और ये बताने के लिए अगर अल्लाह की नाफरमानी की तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो उन्होंने जैसे नाफरमानी की तो उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, एक मिसाल है बहुत बड़ी कि नाफरमानी करने वालों को जन्नत नहीं मिलती। नेक्स्ट आयत नंबर 37। فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم। فتلقى, सीख लिए, क्या सीख लिए? आदम मिर रब्बिही, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से क्या सीख लिए? कलिमात फताब अलैहि, कुछ कलिमात, फिर मेहरबान हुआ उस पर। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो ही तौबा कबूल करने वाला है, बहुत मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तौबा की तौफीक भी देता है, फिर उसे कबूल भी कर लेता है।
फिर उस पर अज्र भी देता है और बंदे से खुश भी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया था। हम अल्लाह सुब्हान व तआला से अपने सब गुनाह की तौबा करते हैं। बेहतरीन खताकार तौबा करने वाला ही है। जो बेहतरीन यानी कि गलती को भी एक बेहतरीन करार दिया गया अगर इंसान तौबा कर लेता है। जो तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि तौबा करना कितना जरूरी है इंसान के लिए अगर उससे कोई गलती खता हो जाती है। आयत नंबर 38। قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون। फकुल्ना बितू, कहा हमने उतर जाओ, मिनहा जमीआ, इससे सब के सब। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से, हुदन कोई हिदायत, फमन तो जो कोई तबिया पैरवी करेगा, हुदाया मेरी हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। हिदायत की पैरवी के फायदे यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि दुनिया और आखिरत में उन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना तंगी होगी, कोई गम नहीं होगा उनको। आयत नंबर 39। वल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। वल्लज़ीन कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू और झुटलाया, बिआयातिना हमारी आयत को, उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग आग के साथी हैं यानी कि आग वाले हैं, जहन्नम में जाएंगे। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो यहाँ बता दिया गया कि जो लोग कुफ्र करेंगे, कुफ्र अभी पीछे आपको बताया गया कि इनकार किया था, तो वो अ, तो इनकार करने वाले यानी कि अल्लाह ताला की आयत को झुटलाने वाले या उनको ना मानने वाले, तो ऐसे लोग जो हैं वो आग वाले हैं, जहन्नम में जाएंगे और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 40। या बनी इस्राईल اذكروا निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअौफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम वइय्याया फरहबून। तो यहाँ बताया जा रहा है, या बनी इसराइल, ए बेटों यानी कि बच्चों, बनी का मतलब होता है बेटे या बच्चे, ए बेटों ए बच्चों, किसके बच्चे? इसराइल, इसराइल के यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम के। इसराइल अज़्कुरू निअमतिल्लती, याद करो मेरी नेमत, वो जो इनाम की मैंने तुम पर। वऊफू बि अहदिकुम, और तुम पूरा करो मेरे अहद को। ऊफी बि अहदिकुम, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे अहद को, तुम मेरे अहद को पूरा करो ए बनी इसराइल के बेटो याकूब अलैहिस्सलाम के। याद करो मेरी नेमत जो तुम पर है, जो तुम पर मैंने इनाम की है, और पूरे करो अपने वादों को, और मैं पूरा करूंगा अपने वादे को। कौन सा वादा? दुनिया में इज्जत का वादा, और आखिरत में तुम आग से बच जाओगे, ये वादा। व इय्याया फरहबून, और सिर्फ मुझसे बस डरो, मुझसे सिर्फ मुझसे ही डरो। तो ये पहली सूरत है जो मुकम्मल तौर पर मदीने में इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई थी। अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ बहुत से अंबिया भेजे, और आखिरी नबी तो तमाम इंसानों की तरफ मबूस किया, जिनमें बनी इसराइल भी शामिल है। उनके लिए इनसे भी खिताब है, उनको भी ये समझाया जा रहा है, अल्लाह का अहद है कि अगर तुम अमल करोगे तो वो तुमको जन्नत में दाखिल करेगा और दुनिया में भी इज्जत बख्शेगा, लेकिन उसके लिए अहद को पूरा करना जरूरी है। आयत नंबर 41। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون आमिनू बिमा और ईमान लाओ साथ उसके जो अनज़लतू मैंने नाजिल की मुसद्दिक़न लिमा मअकुम तस्दीक करने वाली यानी कि कुरान लिमा मअकुम वास्ते उसके जो तुम्हारे पास है वला तकूनू और ना तुम हो जाओ अव्वला काफिरिन भी पहले काफिरों के साथ वला तश्तरू और न तुम बेचो बी आयाती मेरी आयात को समाना कलीला थोड़ी कीमत के एवज व इय्याया फत्तकून तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बस डरो मुझसे। तो यहाँ दुनिया के फायदों की खातिर अपने दीन ना बेचो, हक को वाजे न करो। ये यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है। जो लोग जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ दूसरों को कोई चीज बताने के लिए उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं और जो जिस तरह के जो बातें हैं उन्हें पसंद है वो दीन के नाम पर गढ़ के उनको बता देते हैं। तो इस तरह से अपने तरफ से आयतों को मंसूब करना, दूसरों को कुछ से कुछ और करके बताना या फिर मीनिंग उसका कुछ और है और उसको किसी दूसरे वे में कन्वर्ट करके उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको मीनिंग बताना। तो इन चीजों से यहाँ पर मना फरमाया गया है। आयत नंबर 42। ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون वला तलबिसु और न तुम ढांपो लिबास पहनाओ अल हक हक को बातिली साफ बातिल के हक को बातिल से न बदलो वतक तुम हक और न तुम छुपाओ हक को व तुम तालमो हालांकि तुम इल्म रखते हो। तो यहाँ आयत नंबर 42 में बताया जा रहा था कि तुम हक को लिबास ना पहनाओ। किसका लिबास? यानी कि हक को बातिल से ना बदलो, सही बात को गलत बात से चेंज मत करो और सही बात को लिबास पहना करके उसकी जगह गलत बात को पेश मत करो। वतक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून और ना तुम छुपाओ हक को हालांकि तुम जानते हो। जब तुम्हें सही बात पता है तो तुम्हें उसको छुपाना नहीं है, सही बात को छुपाना नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। नेक्स्ट है आयत नंबर 43। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين वअकीमु सलाता और कायम करो नमाज व आतु ज़काता और अदा करो ज़कात वर्कउ मअर राकिईन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो यह नमाज कायम करने को कहा जा रहा है। सबसे अहम तरीन इबादत जिसका बार बार जिक्र आ रहा है वो नमाज है और नमाज के साथ ही यहाँ जक़ात का भी जिक्र है, जक़ात भी अदा करनी है और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ यानी कि नमाज को टाइम पर अदा करो। बोलने में और सच बात करने में बताने में डर महसूस हो, मुश्किल पेश आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करो। इस आयत को अगर हम पिछली आयत से रिलेट करें तो वहां क्या बताया जा रहा है कि सिर्फ हक बोलना है, सिर्फ सच बोलना है। जब तुम्हें सच बताए तो तुम्हें सिर्फ सच बोलना है। तो अगर सच बोलने में तुम्हें कोई घबराहट है, कोई परेशानी आ रही है, सच बात बताने में डर महसूस हो रहा है, मुश्किल पेश आ रही है, तो फिर क्या करना है? अल्लाह की तरफ रुजू करना है, नमाज कायम करनी है और जक़ात भी देनी है। सदका देने से जक़ात देने से भी जो है वो इंसान को जो घबराहट है या बेचैनी है वो चीज दूर हो जाती है। सदका खैरात करना चाहिए, अच्छा काम करने वालों के साथ मिल जाए, इसमें आसानी होती है। यानी कि जैसे यहाँ पर कहा गया है वर्को मारवाती और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो जब हम अकेले नमाज पढ़ते हैं और जब हम ग्रुप में नमाज पढ़ते हैं तो दोनों नमाजों में फर्क होता है। जब हम एक ग्रुप के साथ नमाज पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रुप के साथ नमाज पढ़ने से नमाज को हम और बेहतरीन तरीके से अदा कर पाते हैं और जब हम अकेले नमाज पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपने कभी ग्रुप के साथ नमाज पढ़ी हो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है आयत नंबर 44। أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون। अतअमरून अन्नासा
और तुम हुक्म देते हो लोगों को, किस चीज का हुक्म देते हो? बिल बिर्रि व तंसौना, नेकी का, और तुम भूल जाते हो, यानी कि लोगों को तो हुक्म देते हो नेकी करने का, लेकिन खुद भूल जाते हो अनफुसकुम, अपने नफ्सों को। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम तिलावत करते हो किताब की। अफला ताक़िलून, क्या भला नहीं फिर तुम अकल से काम लोगे? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहूद थे, यहूद लोगों को कहते थे कि तुम मुसलमान हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो खुद नहीं करते थे। लोगों को तो कहते थे कि तुम मुसलमान हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद यहूद थे, खुद मुसलमान नहीं बनते थे। हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मेराज मेरा गुजर कुछ लोगों पर हुआ जिनके हाथ और जबान आग की कैंची से काटे जा रहे थे। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? फरमाया, ये आपकी उम्मत के दुनियादार लोग हैं जो नेकी का हुक्म देते थे, लेकिन अपनी खबर को नहीं लेते थे। लोगों को तो नेकी का हुक्म देते थे, लेकिन खुद नेकी नहीं करते थे। इस्लाम में असल नेकी ये है कि जो खुद भी अच्छे काम करता है और दूसरों को भी उसकी तरफ दावत देता है। अगर खुद नहीं कर सकता तो दूसरों को भी ना कहे। अगर वो खुद अच्छे काम नहीं कर रहा है तो उसको दूसरों को भी नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पता चल रहा है कि अगर इंसान खुद अमल ना करे, सिर्फ दूसरों को दावत दे अमल करने के लिए, तो ऐसे जो लोग हैं उनकी जबानें जो है वो आग की कैंची से काटी जा रही थी। अल्लाह माफिज ना। आयत नंबर 44। हमारा आयत नंबर 45। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। तो यहाँ बताया जा रहा है वस्तईनु बिस्सब्र, और मदद मांगो सब्र के साथ, व सलाह और नमाज के साथ, और बेशक वो अलबत्ता बड़ी है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर ऊपर आजिजी, यानी कि खुशू करने वालों के ऊपर आजिजी करने वालों के लिए वो बहुत बड़ी है। यानी कि नमाज एक मयार है ये देखने का कि हमारे अंदर ईमान कितना है, हम किस दर्जे के मुत्तकी हैं। तो नमाज हमें ये चीज बताती है। आयत नंबर 46। الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون। الذين يظنون, वो लोग जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम, बेशक वो, मुलाकू, मुलाकात करने वाले हैं, किससे? रब्बिहिम, अपने रब से। व अन्नहुम, और बेशक वो, इलैहि राजिऊन, जिसको यकीन है कि उसको वापस जाना है, उसके लिए नमाज मुश्किल नहीं है और दूसरे कामों से पहले नमाज पढ़ लेगा। जिसको यकीन है कि उसे मरना ही है तो वो दूसरे काम करने से पहले ही नमाज को अदा कर लेगा। हमें जायजा लेना है कि जब अजान होती है तो दिल पर क्या गुजर, नमाज का वक्त आता है तो हमारी क्या कैफियत होती है। नमाज पढ़ते हैं या नमाज से भागते हैं, मसले और नमाज की तरफ किस शौक से जाते हैं, और इस जगह को क्या समझते हैं कि क्या ये कोई बाग है या कोई कैद खाना है। ये जो दुनिया है, और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ये दुनिया हमारे लिए कोई बाग की तरह है या एक कैद खाने की तरह है। सब्र और नमाज से जिंदगी आसान हो जाती है। सब्र भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, तो उससे जिंदगियों में आसानियां आएंगी। तमाम अंबिया मुश्किल औकात में नमाज पढ़ते थे, यानी कि खुशहाली में तो पढ़ते ही थे, मुश्किलों में भी पढ़ते थे। अब हम दुनिया में क्या करते हैं कि खुशहाली में तो नमाज पढ़ते नहीं है, मुश्किल हालात में नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। जबकि अंबिया का जो रवैया था वो क्या था कि खुशहाली में तो नमाज पढ़ते ही थे, मुश्किलात में भी नमाज पढ़ते थे। तो हजरत सारा ने जालिम बादशाह से बचने के लिए नमाज शुरू कर दी थी। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नमाज शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने उनको उस जुल्म से निजात अता की जिस जुल्म में वो मुब्तला थे, और उन्होंने नमाज कायम की तो अल्लाह ताला ने उनको जुल्म से निजात अता कर दी थी। नमाज के फायदे क्या है? अल्लाह की रहमत और हिफाजत मिलती है नमाज पढ़ने से। अल्लाह की रहमत भी मिलती है और हिफाजत भी मिलती है। आयत नंबर 47।
या बनी इस्राईल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي، پھر سے بنی اسرائیل کو ذکر ہے، یاد کرو میری نعمت، پھر سے وہی بات ان کو دہرائی جا رہی ہے. کون سی نعمت؟ التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. میری نعمت کو یاد کرو، میری فضل کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے. نیکسٹ آیت نمبر 48. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی شخص، عن نفس شیئا، جس دن نہیں کام آئے گا کوئی شخص کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منہا، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا شفاعت، اس سے کوئی سفارش. نہ تو اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو کوئی شخص تمہارے کام آئے گا، کسی بھی طریقے سے کام نہ آ سکے گا، اور اگر کام آنا بھی چاہے تو اس کی جو سفارش ہے وہ قبول نہ کی جائے گی. ولا يؤخذ منہا، اور نہ لیا جائے گا اس سے، کیا نہیں لیا جائے گا؟ عدل ولا هم ينصرون، کوئی بدلہ معاوضہ اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا ان سے کہ ان کو سزا نہ ملے، بدلے میں کچھ پیسے لے لیے جائیں، کچھ بھی چیز لے لی جائے اور بدلے میں ان کو سزا نہ ملے، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کسی بھی طرح سے. ان کی نہ تو کوئی مدد کر سکے گا اور نہ وہ مدد لے پائیں گے کسی کی. آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، کس سے نجات دی؟ آل فرعون سے. یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، برے عذاب کی، یذبحون، اور ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو. یعنی کہ جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، جو تمہیں تکلیف دیتے تھے برے عذاب سے، اور بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور زندہ چھوڑ دیتے تھے بیٹیوں کو یعنی کہ عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں جو ہے آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. یہ جو کام جو ہے جو آل فرعون کرتی تھی، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، تو اس میں بھی جو ہے لوگوں کی آزمائش تھی، ان کے رب سے بہت بڑی آزمائش. یہاں پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارا جو تخت ہے نا اس کو گرا دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، جو تمہارے زوال کا سبب ہوگا. تو اس بنا پر اس نے ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تاکہ ایسا کوئی لڑکا آئے ہی نہ. اور یہ سب کیسے پتا چلا تھا اس نے خواب میں دیکھا تھا، جیسا بھی بتایا گیا کہ بنی اسرائیل، فرعون نے جو ہے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو ہے ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تمہارا جو تخت ہے نا، تمہاری جو بادشاہت ہے اس کو گرا دے گا، ختم کر دے گا. تو وہ جو ہے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا تاکہ ایسا کچھ نہ ہو. اور ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فرعون یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ بڑھے، اس کے لیے وہ ایک سال بیٹوں کو ذبح کرتا اور ایک سال چھوڑ دیتا. اسی وجہ سے جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ سال ذبح کرنے کا نہیں تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے
वो साल ज़िबा करने का था। मूसा अलैहिस्सलाम को तो हमें पता है ना कि हमें ज़िबा किया जा रहा था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हारून अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए थे वो साल ज़िबा करने का नहीं था, और जिस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे वो साल जो है वो ज़िबा करने का था। और औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, क्योंकि ये औरतें फिर गुलामी में चली जाती थी, फिरौनियों की, उनकी खिदमत गुजार बनती थी, तो इसलिए औरतों को छोड़ देता था। और इस अजाब में तुम्हारे रब की बहुत बड़ी अजमत थी। ये जो आजमाइश थी ना, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बहुत बड़ी आजमाइश थी। नेक्स्ट है आयत नंबर 50। وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون। वإذ फरकना, और जब फाड़ा हमने, बिकुमुल बहरा, तुम्हारे साथ समुंदर को, फअनजैना, फिर निजात दी हमने तुमको, व अगरकना, और गर्क किया हमने, आले फिरऔन, आले फिरौन को, व अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। और जब फाड़ा हमने तुम्हारे साथ समुंदर को, फिर निजात दे दी हमने तुमको, आले फिरौन को गर्क करके, और तुम देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है, और जब यहाँ बताया जा रहा है कि जब समुंदर को फाड़ा तो बहरे कुलजुम जो समुंदर था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, उनके पास एक आसा था, एक डंडा था। तो जैसे उन्होंने आसा को मारा तो समुंदर में रास्ता बन गया। तो समुंदर में जब रास्ता बना, तो रास्ता बनने की तरफ अल्लाह के इज्न से था, कि जब वो रास्ता बना तो अल्लाह के इज्न से बना है ना वो रास्ता। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि रातों रात सब मेरे साथ चल निकलो। जब वो चल निकले तो आगे समुंदर था और पीछे फिरौन। जब पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे हैं, तो वो भी पीछे से भागा अपने लश्करों को लेकर। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि असा मार, और रास्ता बन गया। जैसे ही उन्होंने असा मारा तो रास्ता बन गया। अल्लाह ताला के हुक्म मिला था उनको कि आप असा मारो समुद्र में तो वहां पर एक रास्ता बन जाएगा। जैसे ही उन्होंने डंडा मारा वहां पर, तो वहां एक रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ पार हो गए, तो हमने तुमको निजात दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम तो समुद्र पार करके निकल गए अपनी कौम को लेकर, पार हो गए। और आले फिरऔन जैसे ही वो समुंदर में आए तो उनको वहीं पर गर्क कर दिया गया। वो रास्ता जो है समुंदर का वो वापस से मिल गया, और वो वापस से एक समुंदर बन गया, कोई रास्ता वहां नहीं रहा। तो वो समुंदर में ही डूबकर मर गए। और फिरऔन के साथ जो उसकी कौम थी ना वो भी साथ ही डूब गई। बनी इसराइल देख रहे थे कि फिरौन और उसका सारा लश्कर पानी में जा रहा था। अल्लाह ने इनके दुश्मन को किस तरह जलील और रुस्वा किया इनकी आंखों के सामने। तो यहाँ पे ये पूरी मिसाल बताई गई है कि किस तरह से ये वाकया हुआ था। आयत नंबर 51। وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون। वइज़ वअदना, और जब वादा लिया हमने, किससे? मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से, और वाहिना 40, लैलतन 40 रातों का। जब हमने वादा लिया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का, तुम तखस्तुमुल इजला, फिर बना लिया तुमने बछड़े को, मिन बादिही, इसके बाद, व अंतुम जालिमून, और तुम जालिम हो। तो यहाँ पर जो है, और जब वादा लिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पे, ये वादा कहाँ लिया गया था, ये उस जगह को यहाँ पर मेंशन किया गया है। वादा जो जिस जगह पर लिया गया था वो थी कोहे तूर। और 40 रातों का, कौन सी 40 रातें? ये वाक्य सेहरा ए सीना में हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे बुलाया 40 रातों के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया था 40 रातों के लिए। रात इसलिए आया कि अरबी में दिन से पहले रात आती है। जो अरबिक है उसमें दिन से पहले रात आती है चांद के निकलने से। तो 40 रात, तो इसलिए यहाँ पर 40 रातें कहा गया। फिर बनी इसराइल ने बना लिया बछड़े को माबूद।
जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर 40 रातों के लिए बुला लिया था, तो उनके पीछे जो है, उनकी जो कौम थी बनी इसराइल, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर चले गए, और ये जालिम थे। अल्लाह ताला का हक है कि उसको बड़ा माना जाए। अगर कोई अल्लाह ताला को बड़ा मानने के बजाय किसी और को मानने लगता है, तो वो शिर्क हो जाता है। अल्लाह ताला का हक है कि उससे उससे दुआ की जाए, सिर्फ उससे ही मांगा जाए, क्योंकि उसी की इबादत करनी चाहिए। तो जब कोई शख्स अल्लाह ताला के अलावा किसी और के सामने झुकता है या किसी और से दुआ मांगता है, तो ये शिर्क हो जाता है। गोया उसने जिससे मांगना था उससे तो मांगा नहीं, जहां हक था बात करने का वहां की नहीं, तो वो असल से हटकर किसी दूसरी टर्म पर चले गए थे, तो ये जो है जुल्म हो गया था, उन्होंने जुल्म किया था। तो ये जो है ये शिर्क में आ जाता है फिर। आयत नंबर 52। ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون। ثم عفونا फिर साफ कर दिया हमने, अनकुम तुमसे, मिन बारी इसके बाद, ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो यहाँ जो है, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी इनको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। बछड़े को माबूद बना लिया था, फिर भी अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया। इसके बाद ताकि वो शुक्र अदा करें, ताकि वो शुक्र अदा करें, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया था, उनको एक और मौका दिया था। तो अगर दुनिया में भी आपके साथ कभी कोई ऐसा मामला होता है कि किसी से कोई गलती हो जाती है, तो उससे दरगुजर करना चाहिए, उसको जो है एक मौका देना चाहिए, और उन बातों को बार बार दोहराते नहीं रहना चाहिए कि तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो वैसा किया था। तो इन चीजों को भूलकर माफ करने का मतलब ही ये होता है कि जो पुरानी बातें हैं उनको भुला दिया जाए और आगे एक स्टेप किया जाए। आयत नंबर 53। وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ। और जब दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकाना और फुरकान, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। किस लिए दी थी किताब? हिदायत पाने के लिए, ताकि उससे हिदायत हासिल की जाए, इसलिए आई थी किताब। और जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, कौन सी किताब? यहाँ पर जो है कुरान नहीं है, यहाँ पर जो है तौरात है। यहाँ पर जो किताब का मफहूम है ना, वो तौरात है। और जब दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, कौन सी किताब? तौरात। वल फुरकान और फुरकान, फुरकान यानी कि फर्क करने वाली। तौरात भी पहले जो है तौरात उतरी थी, और जिसमें भी कुरान की तरह अहकाम दिए गए थे, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। किस लिए? हिदायत पाने के लिए दी थी। आयत नंबर 54। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم। आयत नंबर 54 में क्या बताया जा रहा है? वइज़ क़ाला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम, बेशक तुमने, ज़लमतुम अनफुसकुम, जुल्म किया तुमने अपने नफ्सों पर, बिइत्तिखाज़िकुमुल इजला, बेवजह उसके जो तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, फतूबु इला बारिइकुम, तो तौबा करो तरफ अपने पैदा करने वाले के, फक़तुलू, फिर कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, जालिकुम, ये बात, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम, नजदीक तुम्हारे पैदा करने वाले के, ये बात बेहतर है तुम्हारे लिए और तुम्हारे रब के दरमियान। फताबा अलैकुम, तो वो मेहरबान हुआ तुम पर, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो ही तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, ए मेरी कौम,
ये कौम बनी इसराइल की कौम थी। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, वो बनी इसराइल की कौम थी। ए मेरी कौम, बेशक तुमने जुल्म किया, तुमने अपनी जानों पर। तुम्हारे बछड़े को, तुमने जो है बछड़े को माबूद बनाने की वजह से, उन्होंने जो है एक बछड़ा बना लिया था। बछड़ा जो है वो गाय का बच्चा होता है। तो उन्होंने एक बछड़ा बना लिया था सोने का। तो बछड़ा सोने का बनाने से और उनको माबूद समझने से, तो तौबा करो अपने रब की तरफ। और तौबा के लिए शर्त लगाई गई। क्या शर्त लगाई गई थी? कि अपने नफ्सों को कत्ल करो। यानी जिन्होंने शिरक नहीं किया था, उन्होंने शिरक करने वालों को कत्ल किया। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारे परवरदिगार के करीब। तुम्हारे और तुम्हारे परवरदिगार दोनों के दरमियान ये बात बेहतर है। तो वो तुम पर मेहरबान हुआ, तौबा कबूल हुई। तो वो उन जो है अल्लाह ताला जो है उन पर मेहरबान हुए उनके इस रवैये की वजह से, और उनकी तौबा कबूल की गई। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। आयत नंबर 55। وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون। وإذ قلتم، और जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन नुअमिना, हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे, लका, तेरे लिए, हत्ता, यहाँ तक के नरल्लाह, हम देख ले अल्लाह ताला को। ए मूसा, हम हरगिज तेरे लिए ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला को भी देख लें। जहरतन फअखज़तकुम साइक़ा, सामने, बस पकड़ लिया तुमको बिजली ने। व तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। दुनिया में किसी की इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह को देख सके। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हल्की सी एक तजल्ली ही पड़ी थी, उसको देखकर ही मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बेहोश हो गए थे। आयत नंबर 56। ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون। ثم بعثناكم، फिर उठाया हमने तुमको, मिन बादी, इसके बाद, मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। फिर उठाया हमने तुमको तुम्हारी मौत के बाद, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यहाँ पर उनको फिर से एक मौका दिया गया। आयत नंबर 57। وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। वज़ल्ललना अलैकुम, और साया किया हमने तुम पर। यहाँ पर जो है मैदान तील की बात है, मैदान तील। और साया किया हमने तुम पर, अलगमाम व अंजलना, बादलों का, और नाजिल किया हमने, अलैकुम तुम पर, मन्ना व सलवा, मन और सलवा। कुलू, खाओ, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों में से, मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क दिया हमने तुमको। वमा ज़लमूना, और नहीं उन्होंने जुल्म किया, वलाकिन, लेकिन, कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि वो अपने नफ्सों पर जुल्म करते। कहा जा रहा है कि खाओ पाकीज़ा चीजों में से, सिर्फ पाकीज़ा चीजें खानी है। पाकीज़ा चीजें खाने से ये नहीं कि चीज को अच्छी तरह 3 बार धो लिया और वो पाक हो गई, उसको खा लिया जाए। पाकीज़ा चीजों से मुराद है कि हलाल खाना, हलाल खाना। और हराम, ये चीजें आपकी आ जाएंगी, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो खाओ पाकीज़ा चीजों में से, यानी कि हलाल खाओ। जो रिस्क दिया हमने तुमको, सब कुछ अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है। अब उसको हलाल तरीके से खाना है या हराम तरीके से खाना है, ये प्रॉपरली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वमा ज़लमूना, और नहीं उन्होंने जुल्म किया, लेकिन वो अपनी जानों पर ही जुल्म करते थे। नेक्स्ट आयत नंबर 58। وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ।
तो आयत नंबर 58 में क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर वइज़ कुल्ना दुखुलू, और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल क़रिया, इस बस्ती में, फकुलू मिन्हा, और खाओ इसमें से, हैसु शि'तुम, जहाँ से चाहो तुम, रगदन, खूब, वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ दरवाजे से, सुज्जदम वक़ूलू, सजदा करते हुए और कहो, हित्ततुन, हमें बख्श दे, नगफिर लकुम, हम बख्श देंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, खतायाकुम, तुम्हारी खताओं को, वसनज़ीदुल, और अनकरीब हम ज्यादा देंगे, अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। तो आयत नंबर 58 में बताया जा रहा है कि कहा हमने दाखिल हो जाओ, जब उनसे कहा गया कि दाखिल हो जाओ इस बस्ती में और जहां से तुम चाहो वहां से खूब खाओ, और दरवाजे से दाखिल होना सजदा करते हुए, झुकते हुए, और कहना हमें बख्श दे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारी खताओं को बख्श देगा और अनकरीब ज्यादा देगा एहसान करने वालों को। एहसान करने वालों को अल्लाह ताला ज्यादा नवाजता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आयत नंबर 59, فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون। فبدل الذين، बस बदल दिया, उन लोगों ने, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, कौलन, बात को, बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया बात को। कौन सी बात को? गैर लजी, सिवाय उस बात के, जो बात थी उस बात को बदल दिया। कैला, कही, कही गई थी, लहुम, उनके लिए, फअंजलना, तो नाजिल किया हमने, अलल लजीना, उन लोगों पर, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, रिजजन, अजाब, मिन समाई, आसमान से, बेमा कान यफकुन, बेवजह उसके जो थे वो नाफरमानी करते। यानी कि उन्होंने बात को बदल दिया, जो बात थी उसको दूसरी बात से बदल दिया। कहा गया उनके लिए, तो नाजिल किया हमने उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, जिन लोगों ने जुल्म किया था उन पर नाजिल किया गया आसमान से अजाब, आसमान से अजाब नाजिल किया गया था, बेवजह उसके जो वो नाफरमानी करते थे। तो नाफरमान करने वाले लोगों के साथ क्या अंजाम हुआ था कि उनके ऊपर आसमान से अजाब बरसाया गया था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे आयत नंबर 60 से। दुआ कर लेते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।